This conference is organized by God. और इस सम्मेलन का आयोजन परमेश्वर की ओर से किया गया है। And while discussing and praying, suddenly God spoke to us. और प्रार्थना करते वक्त परमेश्वर ने मुझसे बातें की। And God revealed all of us. और परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक को ये प्रकाशन दिया। And the title of this conference is House on the Rock. और इस सभा का शीर्षक है चट्टान पर घर। Let's begin with Psalm chapter 11 verse 3. और भजन संहिता उसका 11 अध्याय 3 वचन से हम शुरुआत करने वाले हैं। Psalm chapter 11 verse 3. भजन संहिता उसका 11 अध्याय और 3 पद को हम पढ़ेंगे। If the foundations are destroyed, what can the righteous do? यदि नींवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? Hallelujah. Hallelujah. The foundation must be strong. तो नींव मजबूत होनी चाहिए। The foundation must be strong. नींव मजबूत होनी चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। So these days we are seeing many things are happening in the kingdom of God. और इन दिनों में बहुत सारी गड़बड़ियां हम परमेश्वर के राज्य के अंदर देख रहे हैं। Many new people are coming to the Lord. बहुत सारे नए लोग प्रभु में आते हैं। And even those who know Jesus, यहाँ तक कि जो यीशु मसीह को जानते हैं, even we are seeing some up and downs in the ministry और यहाँ तक कि हम सेवकाई के अंदर बहुत सारे ऊपर और चढ़ाव को देखते हैं because of the wrong doctrines, गलत शिक्षाओं के वजह से, because of the wrong teachings. गलत शिक्षाओं के वजह से। So today we are going to focus. तो आज के दिन हम मनन करने वाले हैं। Hallelujah. Hallelujah. We are going to focus on the word of God. हम परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करने वाले हैं। Man can lie, मनुष्य झूठ बोल सकता है, but the word of God is true. लेकिन परमेश्वर का वचन सच्चा है। Hallelujah. When you know the Bible, जब आप परमेश्वर के वचन को जानते हो, no one can deceive you. कोई भी आपको फंसा नहीं सकता है। Amen to that. आमीन कहेंगे। Who are getting deceived? और जो लोग फंसाए जा रहे हैं, Those who don't read the Bible. जो परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते, वो फंसाए जा रहे हैं। Who are the strong people in the Lord? तो परमेश्वर के अंदर मजबूत लोग कौन Those हैं? who know the Bible. जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं। Amen to that. आमीन कहेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Amen. So turn your Bible to Matthew chapter 7 verses 24 to 29. तो मत्ती की किताब उसका 7वां अध्याय 24 से 29 पदों को हम देखने वाले हैं। Matthew chapter 7 मत्ती की किताब उसका 7वां अध्याय 24 to 29. 24 से लेके 29 पद तक हम पढ़ने वाले हैं। Verse 24. और वचन 24 को हम पढ़ेंगे। Therefore, whoever hears this saying of mine and does them, I will liken him to be a wise man who built his house on the rock. And the rain descended, the floods came, and the wind blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। 26th verse. But everyone who hears this saying of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. 26 पद, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया है। And the rain descended, the floods came, and the wind blew and beat on that house, and it fell, and great was its fall. और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। And so it was when Jesus had ended the sayings that the people were astonished at his teaching. जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई। For he taught them as one having authority and not as the scribes. क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। Amen. आमीन। Have you got the story? आपने इस कहानी को सुना? So try to understand what the Bible says. तो समझने का प्रयास करें बाइबल क्या कहती है। Here is a story about two people. यहाँ पर दो लोगों की कहानी है। One clever man and one is a foolish one.
एक बुद्धिमान मनुष्य है और एक मूर्ख मनुष्य है, Both of them built the house. और इन दोनों ने भी घर बांधा। The foolish man, he built his house on the sand. और ये मूर्ख मनुष्य ने अपने घर को बालू के ऊपर The बनाया, wise, clever man, he built his house on the rock. और इस बुद्धिमान चतुर मनुष्य ने अपने घर को भी बनाया। But when you build your house on the rock, it takes time. जब आप अपना घर चट्टान के ऊपर बांधते हो तो उसे समय लगता है, Because क्योंकि when you build on the sand, you can build it immediately. जब आप बालू के ऊपर अपना घर बांधते हो तो उससे आप तुरंत बांध Just सकते you हो, can go and just you can start. आप जा सकते हो, उससे शुरुआत कर सकते हो। But when you build, so I am telling you that two people are here. One is a wise man and one is a foolish man. तो मैं आपसे कह रहा हूं, यहाँ पर दो व्यक्ति, एक बुद्धिमान मनुष्य और एक मूर्ख मनुष्य है। Foolish man, he built his house on the sand. तो इस एक मूर्ख मनुष्य ने अपने घर को बालू के ऊपर बनाया, Hallelujah. The wise man, he built his house on the rock. और एक बुद्धिमान मनुष्य ने अपने घर को चट्टान के ऊपर। When you are building your house on a sand, it takes very little time. जब आप अपना घर बालू के ऊपर बांधते हो तो उसे बहुत कम समय लगता है, But while you are planning to build your house on the rock, जब आप चट्टान के ऊपर घर बनाने की योजना करते हो it takes a long time. तो उसके लिए लंबा समय लगता है। Why? क्यों? Because you have to dig the sand. You have to dig the sand. आपको उस बालू को खोदना पड़ेगा, You have to remove the sand. आपको उस बालू को निकालना पड़ेगा। Until and unless you see the rock, you cannot build. जब तक आपको चट्टान नहीं मिलती तब तक आप उसके ऊपर घर नहीं बांध You सकते हो। have to remove the sand. आपको उस रेत को निकालना होगा। Once the sand is removed, एक बार अगर वो रेत निकाल दिया and आपने, once you see the rock, और जब आपको चट्टान दिखेगा, then you can start building your house. तो आप अपना घर बांधना शुरुआत कर सकते हैं। So both of them started the work of the house. तो इन दोनों ने भी अपने घर के वो बांधने की शुरुआत की। The man who built his house on the sand, immediately the walls and everything raised. और जिस व्यक्ति ने अपने घर को रेत के ऊपर बनाया, उसने अचानक से बनाकर उसके ऊपर रेत से दीवारें और And घर he is बनाए, looking at his friend. और वो अपने दोस्त की ओर अब देख रहा है, My walls of my house are ready. मेरे घर की दीवारें तो तैयार हो चुकी है। My brother, what you are doing? मेरे भाई तू क्या कर रहा है? He will say, वो कहेगा, I am digging in the sand. मैं अभी भी उस रेत की I खुदाई कर am रहा हूं। digging in the sand. मैं रेत की खुदाई कर रहा I am हूं। digging. मैं खुदाई कर रहा This हूं। is the time for my life to dig the sand. ये समय है मेरे जीवन का कि मैं उस रेत की खुदाई करूं। Oh, my walls are ready. Still you are digging? हाँ, मेरी दीवारें भी तैयार होगी, अभी भी तू खुदाई कर रहा है। Now his work is in progress. अब उसका काम विकसित हो रहा है, Hallelujah. Everything is ready. और सब कुछ तैयार है। Everything is ready. सब कुछ तैयार है। Light connection, water connection, electricity connection, everything is ready. बिजली का, पानी का कनेक्शन, सब कुछ तैयार है। And next Sunday और अगले इतवार is the inauguration of the house of which was built on the sand. अब उसके घर की ओपनिंग है जो उसने उस घर को बनाया था। And this man is saying, friend, what you are doing? और ये भाई कह रहे, भाई तू अभी क्या कर रहा I है? am still digging. मैं अभी भी खुदाई कर I रहा am हूँ। still digging. मैं अभी भी खुदाई कर रहा हूँ। Until and unless I see the rock, जब तक कि मुझे चट्टान नहीं दिखाई I पड़ती है, will not start building my house. मैं अपने घर को बांधने की शुरुआत नहीं करूंगा। Please come on Sunday. My house inauguration is there. इतवार को मेरे घर पे आ जा भाई, मेरे घर की उस दिन ओपनिंग है। Sorry, brother, I am busy. क्षमा करना भाई, मैं व्यस्त हूँ। Because this time for me is time to dig. क्योंकि ये मेरे लिए ground. खुदाई करने का समय है। I cannot come because I am busy in digging. मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं खुदाई करने में व्यस्त हूँ। My house is ready and still this mad fellow is digging. मेरा घर तो तैयार हो चुका है, लेकिन फिर भी ये मूर्ख मनुष्य अभी भी खुदाई कर My रहा है। dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, many of your relatives had gone away from you. बहुत सारे आपके रिश्तेदार आपको छोड़कर जा चुके हैं। Hallelujah. Your classmates, they have great success in their lives. आपके जो क्लासमेट्स थे उनको जीवन में अच्छी सफलताएं मिली है। You say, Lord, you gave them success. आप बोलते प्रभु आपने उनको उन्नति दी, Why I am not getting the success? मुझे क्यों नहीं सफलता मिल रही है? This is the time for the digging. ये तुम्हारा समय है खुदाई का। This is the time for ये digging. तुम्हारा समय है खुदाई का। Until and unless you see the rock, जब तक कि आप चट्टान को नहीं देखते हो, don't start the
building the house. तो अपने घर को बांधना शुरुआत ना करें। Hallelujah. And after few months, और कुछ महीनों के बाद finally he found the rock अंतिम ने उसे चट्टान को and पाया। he started building the house. अब उसने अपने घर को बांधना शुरुआत किया। Slowly, slowly the house is coming up. आहिस्ते आहिस्ते उसका घर बनता जा रहा है। Hallelujah. हालेलुया। He started building the house. उसने अपने घर को बांधना शुरुआत किया He brought the same plumber और उसने उसी प्लम्बर को लेकर आया who gave service to this house on the sand. जिसने उस वालू के घर के ऊपर घर बनाया था, उसको वही सर्विस He दी। brought the same painter, उसने उसी पेंटर को बनाया, same electrician. उसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाया। All the workers who work for that house came to this house. और जिन सारे सहकर्मी ने उस घर को बनाया, उन सबों को इसने भी बुलाया। Now the people, they are walking on the street. अब लोग रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। भाई काय सेम टू सेम घर आहे, एकदम सेम टू सेम. ह्याचा कलर असा, त्याचा पण कलर तसाच. Hallelujah. Both the houses are similar. और दोनों भी घर एक समान हैं, Same size, वही आकार, same gate, वही गेट, same door, वही दरवाजे, same floor, same everything similar. सब कुछ समान है। No one should compare you with them. कोई भी आपकी तुलना उनके साथ नहीं करनी चाहिए। Hallelujah. People, they don't understand. लोग ये समझ नहीं पाते। Hallelujah. Don't look at the outer appearance of people. लोगों के बाहरी रूप की ओर ना जाए। Recognize people of God with their inner person. लोगों को उनके अंदरूनी रूप से पहचाने जो परमेश्वर के जन हैं। Some people, they say, if I will wear this type of cloth, then only anointing will come. कुछ लोग बोलते हैं, अगर मैं इस रीति से वस्त्र पहनूंगा तो ही अभिषेक आएगा। Both the houses are ready. अब ये दोनों भी घर तैयार हैं। Hallelujah. Both the families are so happy. और दोनों भी परिवार बहुत ही खुश है। Both the families, they are enjoying their new house. और ये दोनों परिवार भी नए घर का लुत्फ उठा रहे हैं। But one day, लेकिन एक दिन suddenly the rain started. अचानक से बारिश शुरू हो गई। Hallelujah. हालेलुया। Now that rain is increasing. अब ये बारिश बढ़ती जा रही है, Wind is blowing. तेज हवा चल रही है। The rain was so heavy. अब ये बारिश बहुत ही बढ़ती गई। Hallelujah. When the rain comes heavily, और जब बारिश जोर से आती है, it turns into the flood. और वो बाढ़ में उसका रूपांतर होता है। And there was a great flood. और वहां पर बहुत बड़ा डर आ गया। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, that flood came अब वो बाढ़ आ गई। and it heated both the houses. अब ये बाढ़ आकर उन दोनों घरों को टकरा गई। Both the houses with the same force. और दोनों घर के ऊपर उसी प्रभाव के साथ, With same energy, with same power. एक समान ताकत और एक समान शक्ति के साथ This flood heated both the houses. और ये बाढ़ आकर उनके ऊपर टकरा गई। What happened that क्या day? हो गया उस दिन? The house which was built on the sand, जो घर रेत के ऊपर बनाया गया it fell down, वो पूरी रीति से टूट गया, destroyed completely. पूरी रीति से निस्त नाबूद हो गया। All the effort taken by that owner was vanished that day. और उस मालिक ने जितने भी परिश्रम किए थे सारे व्यर्थ हो गए। The house fell down, अब वो घर पूरी रीति से टूट गया, destroyed completely. पूरी रीति से तबाह हो गया, Nothing left. कुछ भी नहीं बाकी रहा। From top to bottom, it was destroyed ऊपर completely. से नीचे तक वो पूरी रीति से तबाह हो गया, Destroyed. तबाह हो गया। And now, अब the house which was built on the rock, जो चट्टान के ऊपर बांधा हुआ घर था, the rain, बारिश, wind, हवा great flood, और बहुत बड़ी बाढ़, it attacked that house. उसने भी उसके ऊपर आक्रमण किया, But still that stand. लेकिन फिर भी वो घर खड़ा रहा। Can you say amen to क्या that? आप आमीन बोल सकते हैं उसके लिए? Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The Bible tells us, बाइबल कहती है, when you listen to the Lord जब आप परमेश्वर की ओर सुनते हो and when you obey, और जब उसके आगे का पालन you करते हो, become like that house which was built on the rock. आप उस व्यक्ति के समान बनते हो जिसने अपने घर को चट्टान के ऊपर बांधा था। Hallelujah. हालेलुया। Both the people, दोनों लोगों ने, they heard the voice of God, उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना, but one obeyed and one disobeyed. लेकिन एक ने उसकी आज्ञा का पालन किया और दूसरे ने अवज्ञा की। The
one who disobeyed what God said to him, और जिस व्यक्ति ने आज्ञा को ना माना जो परमेश्वर ने कहा था, destroyed. पूरी तरह से तबाह हुआ। But one who obeyed, लेकिन जिसने उसकी आज्ञा का माना, stood firmly. वो धैर्य के साथ खड़ा रहा। Can you say amen to क्या आप that? उसके लिए आमीन बोल सकते हैं? Hallelujah. हालेलुया। My dear brothers and मेरे sisters, प्रिय भाई और बहनों, great rain is coming soon. बहुत ही महान बारिश आने वाली है। Are you here? तो आप यहाँ पर हैं? Wind is going to come. तेज हवा आने वाली है, Flood is going to come. बाढ़ आने वाली है, Many things are going to happen. बहुत सारी चीजें होने वाली है। That day, उस दिन the world will recognize और दुनिया समझ लेगी, जान लेगी who is standing on the rock, कौन चट्टान के ऊपर खड़ा है, who is a true and who is a false person. कौन सच्चा है और कौन झूठा व्यक्ति है। That day is very near. और वो दिन बहुत ही निकट है। Hallelujah. हालेलुया। Is there somebody who received Jesus just within 1 or 2 years? Is there somebody here? कोई यहाँ पर है जिसने सिर्फ 1 या 2 साल हुए यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार Is किया there है? somebody? कोई है ऐसा हमारे बीच में? Praise the Lord. May God bless you. प्रभु Hallelujah. आपको आशीष Praise करे। the Lord. Hallelujah. Why I'm asking मैं आपको you? क्यों पूछ रहा है ये सब? Listen carefully. ध्यान से सुने। When Moses was born, जब मूसा का जन्म हुआ था, that Pharaoh wanted to kill him फिरौन उसको मार डालना चाहता था, because he knew that small child can destroy the kingdom of Pharaoh. क्योंकि वो जानता था कि एक छोटा सा बच्चा फिरौन के राज्य को नाश कर सकता है। Big king, एक बड़ा राजा, he is trying to fight with a small baby. वो उस छोटे बच्चे से भयभीत था। Are you getting church? आप समझ पा रहे हो कलीसिया? Saul is a big king, शाऊल एक बहुत बड़ा राजा था, but wanted to kill the small David. लेकिन छोटे दाऊद को मारने पर तुला था। Jesus was a small baby. यीशु मसीह छोटा बच्चा था। You know the wise men, they went to Herod, अब जानते वो ज्ञानी लोग उसके पास गए थे। and the king of Jews has born, where he is. यहूदा का राजा जन्मा हुआ, वो कहाँ पर है? अरे मीच किंग का इकडचा अजून कोणता राजा आलाय, दुसरा पण आलाय, कोण आहे ते? बोला आम्ही त्यालाच भेटायला चाललोय. हालेलुया. When he came to know that somebody else has born who can take my kingdom, जब वो समझ गया कोई तो ऐसा व्यक्ति जन्मा है जो मेरे राज्य के अधिकार को ले सकता है, so he wanted to kill Jesus. तो उसी कारण वो यीशु को मार डालना चाहता था। Hallelujah. हालेलुया। God will fight for you. परमेश्वर स्वयं आपके लिए लड़ेगा। मंत्रालयाच्या बाहेर आम्ही उभे उपाशी आम्ही, हे महाराज आमच्यासाठी हे करा आणि ते करा. तुझा महाराज तो नाही, तुझा स्वर्गात बसलेला महाराज. Amen. Hallelujah. हालेलुया। Do not fight your battles. अपने युद्ध को अपने आप से ना लड़े, Ask God to fight for you. परमेश्वर से कि वो आपके लिए लड़े। Hallelujah. हालेलुया। When you go ahead and you say I will fight, जब आप आगे जाते और कहते कि मैं युद्ध लड़ूंगा, God will say go. प्रभु कहेगा जा, लढ आता, तूच लढ, अभी तू ही लड़, मी बघतो तू कसा लढतो. But when you say God लेकिन जब आप कहते हो प्रभु fight for me, मेरे लिए तू युद्ध को लड़, God will say come behind. प्रभु बोलेगा तू पीछे आ जा, बघतो आता कोण. अब मैं देखता हूँ। Hallelujah. Hallelujah. He will destroy your enemies. वो आपके शत्रुओं का नाश कर He देगा। is so वो powerful. बहुत ही सामर्थी है, He will fight for you. वो आपके लिए लड़ेगा। So why I'm trying to tell you these things. मैं आपको ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ? See, God protected David, जैसे परमेश्वर ने दाऊद की रक्षा की, Moses, मूसा, Jesus. यीशु, God had planned for them, no? परमेश्वर उनके लिए एक योजना की थी And God protected them. और परमेश्वर उनकी रक्षा भी की। When you come to the Lord, जब आप प्रभु के पास आते हो, you are like baby Moses. आप एक मूसा बालक के समान हो। Hallelujah. हालेलुया। You are like that David. आप उस दाऊद के समान हो। You are like baby Jesus. आप एक बालक यीशु के समान हो। He will protect you. वो आपकी रक्षा करेगा। Hallelujah. हालेलुया। The storms will come. आंधियां आएगी, Problems will come. समस्या आएगी, You will have many problems in your life. आपके जीवन में बहुत सारी समस्या आएगी। Devil will try to destroy you. शैतान आपको तबाह करना चाहेगा, But remember one thing. लेकिन एक बात का ध्यान करें, Your God is holding your hand. आपका परमेश्वर आपके हाथों को थामे है। He will never let you down. वो आपको कभी भी नीचे गिरने नहीं देगा। He will never let you वो आपको down. कभी नीचे गिरने नहीं देगा। Hallelujah. हालेलुया।
संडे का आएगा तो लोग बोलते हैं मैं चट्टान के ऊपर, Every Sunday on chattan. हर एक इतवार को चट्टान पर, Monday to Saturday वाड़ू. सोमवार से लेके शनिवार तक वो रेत पर रहेंगे। A part-timer believer cannot defeat a full-timer devil. एक पार्ट टाइमर विश्वासी फुल टाइम काम करने वाले शैतान को हरा नहीं सकता है। If he is a devil for full time, अगर वो शैतान पूरे दिन के लिए काम करता है, हालेलुया, सैतान जर पूर्ण वेळेसाठी सैतान आहे, Yes. रात्री 2ला गेला तरी तो सैतान आहे, पहाटे 5ला उठला तरी तू आता कोण आहे, सैतान आहे. पण बिलीवर लोक कलर बदलतात, आज मी इकडे आहे, आता मी तिकडे आहे, हे इकडे तिकडे सोडून द्या. So two houses we are seeing. तो दो घरों को हमने देखा है। The houses were strong but it is about the foundation. दोनों भी घर मजबूत थे, लेकिन उनकी नींवें वो बहुत अहम रखती है। The house on the rock is a strong house. तो जो घर चट्टान के ऊपर बांधा गया वो मजबूत था। Amen to that. आमीन कहेंगे। Hallelujah. Say, I am on the rock. कहिए मैं चट्टान के ऊपर हूँ। Rain came, बारिश आई, floods came, बाढ़ आई, winds came, आंधी आई, but one house remained strong लेकिन एक घर मजबूत बना रहा and it stood. और वो खड़ा रहा। Now we learn about the foundation. अब हमने नींव के बारे में सीखा। The foundation of both the houses were different. और दोनों घर की नींवें अलग थी। One is on the rock एक चट्टान पर थी and another one it was on the sand. और दूसरी जो थी वो रेत पर थी। Now second thing we must understood. तो दूसरी बात हमको समझ लेना चाहिए, Rock means Jesus. चट्टान मतलब यीशु मसीह। Can you say amen to क्या that? आप उसके लिए आमीन बोल सकते हैं? Hallelujah. हालेलुया। That rock is Jesus. Now if anyone builds on this foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, यदि कोई इस नींव पर सोना, चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काट या घास या फूस का रद्दा रखे, each one's work will become clear, for the day will declare it, because it will be revealed by fire, and the fire will test each one's work of what sort it is. तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। Can you say amen? क्या आप उसके लिए आमीन बोल सकते हैं? Bible tells us about the construction of the building. और बाइबल यहाँ पर उस घर के नींव के बारे में बताती है। Some build with gold, कुछ लोगों ने सोने से बांधा, some build with silver, किसी ने चांदी से बांधा, some build with precious stones, किसी ने बहुमूल्य पत्थर से बांधा, some with wood, hay and straw. किसी ने लकड़ी या फिर रद्दा से बांधा। Hallelujah. हालेलुया। This is the kind how you build your house. तो इस प्रकार की ये सारी चीजें कि आप अपने घर को किस रीति से बांधते हो। So how God will test your house is strong or not? तो कैसे परमेश्वर परखेगा कि आपका घर मजबूत है या नहीं है। The Bible says that clearly. बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है God will test and he will see your house is strong or not with the fire. परमेश्वर आपके घर का परीक्षण करेगा कि वो मजबूत है कि नहीं अपनी अग्नि के जरिए। If house is built with wood, hay or straw, अगर आपका घर लकड़ी, रद्दा या किसी और दूसरी चीज से बना है, it will be burned completely. वो पूरी रीति से अग्नि से जल जाएगा। But with gold, silver and precious stones, लेकिन सोने, चांदी और बहुमूल्य पत्थर के द्वारा it will remain. वो ऐसे ही बना रहेगा। Hallelujah. Hallelujah. When you put gold into the fire, जब आप सोने को आग में डालते हो, it will remain as a gold. वो इसी रीति से रहेगा। It will melt, but it will remain as a gold. वो पिघल सकता है लेकिन वो वैसे ही रहेगा। But when you burn the wood, लेकिन जब आप लकड़ी को जलाते हो, it can turn into the ash, वो राख में बदल सकती है and it can be blown away. और वो उड़ सकती है। So the work of God that you are doing today, जो परमेश्वर का काम आज आप कर रहे हो, it must be firm and strong. वो स्थिर और धैर्य होना चाहिए। Can you say amen to that? क्या आप उसके लिए आमीन बोल When सकते you हैं? build your house, जब आप अपने घर को बांधते हो, now just focus on your family. जब आप सिर्फ अपने परिवार की ओर अपना ध्यान दें, How you build your house, आप अपने घर को कैसे बांधते हो, how you build your family life. आप आपके पारिवारिक जीवन को कैसे बांधते हो, Are you going to the church? क्या आप कलीसिया में जाते Are हो, you going to the church regularly? क्या आप कलीसिया के अंदर निरंतर जाते हो, How you are building, how you are doing the work of God. कैसे आप बांध रहे हो, आप परमेश्वर के काम को कैसे कर रहे
रहे हो। Hallelujah. It is very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। All the time we hear the preaching that Jesus loves you. हर समय हम इस प्रचार को सुनते कि यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। Yes, my God is love and He will love you. हाँ, मेरा परमेश्वर प्रेम है और मुझसे प्रेम करता रहेगा। Even if you don't love Him, still He will love you. यहाँ तक कि आप अगर उससे प्रेम भी नहीं करते लेकिन फिर भी वो आपसे प्रेम करता है। Yes or no? हाँ या नहीं? Question is that और मेरा सवाल ये है, God is love, परमेश्वर प्रेम है, but do you love your God? क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हो? Hallelujah. It is very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। If you love your God, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते you हो, will obey His commandments. आप उसकी आज्ञा का पालन करोगे। You will listen to Him and you will follow Him. आप उसके और सुनेंगे और उसका अनुकरण करोगे। And you will build with the strong things. और आप अपने घर को मजबूत चीजों से बांधोगे। Hallelujah. Hallelujah. Those things are going to be vanished. You will not build with that. और जो चीज है हवा में उड़ जाएगी, उन चीजों से आप अपने घर को कभी नहीं बांधोगे। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। The things which cannot give you supernatural joy, जो चीजें आपको अलौकिक आनंद नहीं दे सकती है, remove those things from your life. उन चीजों को आपके जीवन से बाहर निकाल कर फेंक दो। When you build the kingdom of God, जब आप परमेश्वर के राज्य को बांधते हो, what should be the foundation? How you should build the kingdom of God? उसकी नींव कैसी होनी चाहिए और परमेश्वर के राज्य को आप कैसे बांध सकते हो? Hallelujah. हालेलुया। Your church must not be built on the miracles, आपका चर्च सिर्फ चमत्कार के ऊपर आधारित नहीं होना चाहिए, not on prophecies. भविष्यवाणी के ऊपर नहीं। Yes, we need prophecies, we need healing, we need miracles. हाँ, हमें भविष्यवाणी की जरूरत है, चंगाई की जरूरत है, चमत्कार की जरूरत है। If your church is built on the miracle, अगर आपका चर्च सिर्फ चमत्कार के ऊपर आधारित है, somebody will come, they will say, I have a headache. और कोई तो आएगा और बोलेगा मुझे सिर दर्द है, Pastor, pray. पासवान प्रार्थना करें, He will be healed. उसको चंगाई And मिलेगी the person will go. और वो वापस चला जाएगा। Next time when headache will come, surely I will come to the church. दूसरी बार जब मेरा सिर दर्द होगा तो मैं निश्चय आपके चर्च में आऊंगा, Because your foundation is miracle. क्योंकि आपकी नींव ही चमत्कार के ऊपर But है। when you say, लेकिन जब आप कहते हो our foundation is word of God, मेरी नींव परमेश्वर की the वचन है, people will keep on coming. तो लोग निरंतर आते रहेंगे, Your ministry will be so strong. आपकी सेवकाई मजबूत होगी, No one can destroy that ministry. कोई भी आकर उसकी सेवकाई को तबाह नहीं कर पाएगा। Can you say amen? क्या आप उसके लिए आमीन बोलोगे? Hallelujah. Hallelujah. बोले यीशु मसीह की जय। Are you understanding क्या आप something? समझ पा रहे हो कुछ? Hallelujah. हालेलुया। So the word is very clear. तो वचन यहाँ पर साफ रीति से कहता है, Some people they build with gold, silver and precious stone. कुछ लोगों ने सोने, चांदी और बहुमूल्य पत्थर से घर बांधा। So if you want to build which can remain forever, अगर आप अपने घर को ऐसी चीजें से बांधोगे जो अनंत काल के लिए रहेगा, hallelujah, focus on the supernatural things. तो अलौकिक चीजों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें। Do not build by your own. अपने आप से घर को ना बांधे। Hallelujah. Hallelujah. Which can be burned, which can be destroyed. Do not build like that. चाहे वो घर जल सकता है, पानी से तबाह हो सकता है, ऐसे घर को आप नहीं बांधे। Hallelujah. हालेलुया। Some people I have seen, कुछ लोगों को मैंने देखा है, they go to the very powerful church, वो बहुत ही सामर्थ्य कलीसिया में जाते हैं, but they commit sin. लेकिन वो पाप करते हैं। Listen carefully, ध्यान church. से सुने कलीसिया। They go in the company of a good pastor. वो एक अच्छे पासवान के साथ में उठते बैठते They हैं, go to the best church of the city. वो शहर के एक अच्छे कलीसिया के अंदर जाते हैं, Still their personal life is away from the Lord. लेकिन फिर भी उनका व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर से दूर है। Why? क्यों? Because they are not building that relationship with God. क्योंकि वो अपने संबंध को परमेश्वर के साथ में सही मायने से स्थापित नहीं कर पा That रहे। real strongness is not there. उनके अंदर वो असली मजबूती जड़ नहीं दिखाई दे रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Church must be strong. कलीसिया मजबूत होनी चाहिए, Family must be strong. परिवार मजबूत होना चाहिए। The Bible says, what is the foundation? तो बाइबल कहती है कि बुनियाद क्या है। Ephesians chapter 2 verses 20 to 22. और इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय 20 से 22 तक। Ephesians chapter 2 इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय 20 to 22. 20 से 22 तक। Having been built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, In whom the whole building being fitted together grows
into a holy temple in the Lord, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, in whom you also are being built together for a dwelling place of God in the Spirit. जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। Can you say amen? क्या आप आमीन बोल सकते हैं? Hallelujah. हालेलुया। The church is built on the foundation of apostles and prophets, और कलीसिया जो है उसकी बुनियादी नींव जो है प्रेरित और भविष्यवक्ताओं के रूप में की गई and है, Jesus Christ is the chief cornerstone. और यीशु मसीह कोने का पत्थर है। So God has kept his servants in the kingdom of God. तो परमेश्वर ने अपने दासों को उसके राज्य के अंदर रखा है, On that foundation the church has been built. और उस बुनियाद के ऊपर कलीसिया बांधी गई है। Hallelujah. Hallelujah. The foundation is very strong. और उसकी बुनियाद बहुत ही मजबूत है। Not only Jesus. सिर्फ यीशु ही नहीं, Jesus is powerful, we know he's strong, but even he took all the apostles and the prophets together. सिर्फ यीशु ने, यीशु हम जानते हैं बहुत ही ताकतवर सामर्थ, लेकिन भविष्यवक्ता और प्रेरित इनको भी उसने ले लिया है। So we all are the part of this building. तो हम सारे इस कलीसिया के भाग हैं। Hallelujah. हालेलुया। If somebody will appreciate you, good. Even somebody will not appreciate you, still you have to come to the Jesus. अगर कोई आपको सराहना करता है ठीक है, लेकिन कोई आपको यदि कोई सराहना भी नहीं करता है तो भी आपको कलीसिया में आना यीशु के लिए। Hallelujah. Keep Hallelujah. coming to the Lord. प्रभु के पास आते रहे, Keep coming to Jesus. यीशु के पास आते रहे, Keep coming to the church. कलीसिया में आते रहे। Do not give any kind of excuse. किसी भी प्रकार के कारण मत वहां पर दो, Because we all together, क्योंकि हम सब एक होकर we are the church. हम कलीसिया है। Can you say amen to आप that? उसके लिए आमीन बोल सकते हैं। Hallelujah. We are the body of Christ. हम मसीह के अंग है। Many times I explain to people. बहुत बार मैं लोगों को समझाता Again हूं। I will tell you. मैं फिर से आपको बताऊंगा, When you say I serve God, जब आप कहते हो कि मैं प्रभु की सेवा करता it हूं, doesn't mean त्याचा असा अर्थ होत नाही की जीसस क्राइस्ट इज सिटिंग ऑन द थ्रोन एंड जस्ट यू आर सिटिंग एट द फीट ऑफ जीसस. इसका अर्थ ये नहीं कि यीशु मसीह सिंहासन के ऊपर बैठा है और आप उसके चरणों के पास बैठे हो। प्रभू असा राजासनावर बसलाय मस्त पैकी आणि त्याचे पाय वगैरे तुम्ही दाबताय त्याच्याजवळ, मी प्रभूची सेवा करतोय. दिस इज नॉट द विल ऑफ गॉड. तो ये परमेश्वर की इच्छा नहीं कि आप उसके चरणों को दबाए। प्रभूची सेवा म्हणजे काय त्याचा अर्थ समजून प्रभु की घ्या. सेवा का अर्थ समझ लो। तो मस्तक आहे, तो स्वर्गात वो आहे, सिर है, वो स्वर्ग में है, पण आपण शरीर आहोत. लेकिन हम उसके अंग है। जेव्हा या शरीराची तुम्ही सेवा करता तेव्हा तुम्ही त्याची सेवा जब करता. आप इस शरीर की सेवा करते हो तो आप उसकी सेवकाई When करते you हो। serve the church, जब आप कलीसिया की सेवा करते you हो, serve the Almighty God. आप सर्वशक्तिमान की सेवा करते हो। When you go and wipe the tears of somebody, जब आप जाते हो किसी के आंसू को पोंछते you हो, go and share the gospel to somebody. आप किसी के पास जाकर सुसमाचार बांटते हो। Can you say amen to आप that? उसके लिए आमीन बोल सकते If हैं। someone is dying, अगर कोई मर रहा है someone is on the bed of dying bed, और कोई तो मृत्युशयी के उसके ऊपर पड़ा हुआ you है, go to them आप उसके पास जाते and हो, you tell them, आप उससे कहते हो my Jesus can raise you. मेरा यीशु तुझे जिंदा कर सकता है। These are the dead cells in the body. और ये शरीर के अंदर मरे हुए सेल्स है, But your word will bring life into them. लेकिन आपके शब्द उसके शरीर के अंदर जान को लेकर आ सकते You are हैं। bringing a revival to Mumbai. आप मुंबई के अंदर बेदारी को लेकर You आते are हैं। bringing a revival to nation of India. आप भारतवर्ष के राष्ट्र के अंदर बेदारी को लेकर आते हो। That life is in you. वो जीवन आपके अंदर है, And when you declare that life for the people, और जब आप उस जीवन की घोषणा लोगों के लिए करते you हो, are serving his body. आप उसके अंग की सेवा करते हो। Hallelujah. हालेलुया। Don't expect big things. बड़ी चीजों की अपेक्षा ना करें। Are you here, church? आप यहाँ पर कलीसिया, Some people, they come to the church, within 1 month they want to stand here. कुछ लोग कलीसिया में आते और 1 महीने के अंदर उनको वहां पर खड़ा होना पसंद होता है। I want to become a preacher. मुझे एक प्रचारक बनना है। First go and teach the Sunday school children. पहले जाओ और संडे स्कूल के बच्चों को चर्च को सिखाओ। Hallelujah. हालेलुया। How you build आप कैसे बांधते हो, is very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। Hallelujah. Your God knows everything. आपका परमेश्वर सब कुछ जानता है। Hallelujah. हालेलुया। He knows everything. वो सब कुछ जानता है। He is watching at you. वो आपकी ओर How भाग you रहा है। build the kingdom of God. आप कैसे परमेश्वर के राज्य को बांध How रहे हो, you serve one another. आप कैसे एक दूसरे की सेवा टहल कर रहे हो। Hallelujah. हालेलुया। If you love God अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं and if you hate
your brothers and sisters, अगर आप अपने भाई बहन का तिरस्कार करते you हो, are dangerous for the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य के लिए खतरनाक हो। If you hate your own brother and sister, अगर आप खुद के भाई और बहन से नफरत करते हो, you can make a damage to the kingdom of आप God. परमेश्वर के राज्य के अंदर बहुत बड़े कट लेकर आते हो। If that pastor is coming, अगर वो पासवान आता है, I will not go. मैं नहीं जाऊंगा। You are damaging the kingdom of आप God. परमेश्वर के राज्य को बिगाड़ रहे हो, नुकसान पहुंचा रहे You हो। are damaging the kingdom आप of God. परमेश्वर के राज्य के लिए नुकसान पहुंचा रहे हो। Hallelujah. Hallelujah. Be humble. नम्र बने, Hallelujah. Build with the love of God. परमेश्वर के प्रेम से उसे बांधते रहे, That building will be very strong. और वो बांधना बहुत ही मजबूत हो जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। We are the body of Christ. हम मसीह के शरीर है, अंग है। ह्या हातावर प्रेम करताना ह्याच्यावर नाही करणार चालेल का? We have to love. हमें प्रेम करना होगा। Hallelujah. Hallelujah. This is how we can make this construction strong. और इस रीति से हम इस काम को मजबूत कर The सकते rock is strong, हैं। चट्टान मजबूत है, but what you are building, it should be strong. लेकिन जो कुछ ही उसके ऊपर बांध रहे हो भी मजबूत होना चाहिए। Otherwise, what will happen? नहीं तो क्या होगा? The flood will come, बाढ़ आएगी, the rock will remain. चट्टान रहेगी, But what you have built, लेकिन जो भी आपने उसके ऊपर बांधा है, wood or whatever the things which can be vanished, और जिन चीजों से आपने लकड़ी या कुछ चीजों से उसको बनाया हुआ है, even that house can be destroyed. यहाँ तक कि वो घर भी तबाह हो सकता है। We should understand. हमें ये समझना चाहिए, We are in the kingdom of God. हम परमेश्वर के राज्य में We are हैं, in the Lord. हम प्रभु में हैं, But how we build the ministry, लेकिन कैसे हम सेवकाई को how बांधते we हैं, are growing our children in the Lord. हम कैसे हमारे बच्चों को प्रभु के अंदर बढ़ा रहे हैं। Don't teach them the wrong things. उन्हें गलत शिक्षा मत सिखाइए। Hallelujah. Hallelujah. Teach them how you can serve the Lord in a better way. आप कैसे प्रभु की सेवा का कर सकते, उन्हें अच्छी रीति से समझाएं। Jesus gave everything free of cost. यीशु मसीह ने सब कुछ मुफ्त में हमें दिया है। He paid the price on the cross of Calvary. उसने कलवरी क्रूस के ऊपर उसके लिए दाम चुकाए हैं। When you preach the gospel, जब आप सुसमाचार का प्रचार करते हो, never demand for anything. किसी चीज का डिमांड ना करें। Hallelujah. Hallelujah. If you're calling me, I will take this much amount. अगर आप मुझे बुला रहे हो तो मुझे ये रकम आपको देनी पड़ेगी। You are a businessman or a businesswoman. आप एक व्यवसाय करने वाले पुरुष हो या व्यवसाय करने वाली The महिला हो, gospel is given freely. सुसमाचार जो मुफ्त में दिया गया Share है, the gospel freely. और सुसमाचार जो मुफ्त में बांटो, Share the word of God freely. परमेश्वर के वचन को मुफ्त में बांटो। So how you build is very तो important. आप कैसे घर को बांधते हो बहुत ही महत्वपूर्ण है, Build it in a strong way. और उसे मजबूत तरीके से बांधने का Build a प्रयास करें। strong house for the Lord. परमेश्वर के लिए एक मजबूत घर को बांधे, Build your church strongly. अपनी कलीसिया को मजबूती से If बांधिए। somebody is trying to destroy the church, अगर कोई कलीसिया को तबाह करना चाहता है, correct them on the spot. उसे उसी समय उसे सुधारे। Hallelujah. हालेलुया। Don't be weak. और वहां पर कमजोर ना बने, Hallelujah. Be strong. मजबूत बने रहे। Hallelujah. Sometimes it becomes very difficult to become a strong person. कई बार ये हमारे लिए बहुत ही कठिन हो जाता है एक मजबूत व्यक्ति बनने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। The book of Joel is a very powerful book in the Bible. और योएल की किताब बाइबल के अंदर बहुत ही सामर्थ्य किताब है। I cannot tell you the exact time when it was written, मैं ये आपको उसका समय नहीं बता सकता कभी लिखी गई थी, but because there is no name of any king in the book of Joel. क्योंकि जोएल की किताब के अंदर किसी के राजा का नाम दर्ज किया गया नहीं है। Wherever we can see the names of the kings and we can recognize in what time this king used to be, so we can recognize the time period of that book. तो उस किताब के अंदर जहां पर भी राजाओं का नाम लिखा गया तो हम उससे पहचान सकते हैं कि वो किताब किस समय में लिखी गई थी। But reading again and again, I have came to the conclusion, और बार बार पढ़ने से मैं समझ पाया हूँ, it might be written during the time of Ezra and Nehemiah, maybe possible. शायद ये संभव है कि वो एज्रा और नेहमिया के समय में लिखी गई हो। So in this book you can see तो इस किताब के अंदर आप देख सकते the हैं, story of hungry locust, you can see. वहां पर भूखे टिड्डियों के बारे में लिखा गया And the है, hungry locusts, they are compared with the end time. और ये भूखी टिड्डियों को अंत के दिनों के साथ में उसे तुलना की गई How है। the locusts come to eat all harvest. और कैसे टिड्डियां फसल खाने के लिए वहां पर आती है, Same thing is going to happen in the end time. और यही बातें अंतिम दिनों में होने वाली है। Everything is compared like that in this book of Joel. और इस जोएल की किताब के अंदर सब कुछ इसके बारे में लिखा गया We are है। going to read one scripture from book of Joel. तो योएल की किताब में से हम एक अध्याय को पढ़ने वाले हैं। Joel chapter 3 verse 10. योएल की किताब उसका 3 अध्याय 10 पद। Beat your plowshares
into swords, and your pruning hooks into spears. Let the weak say, I am strong. अपने अपने हल की फाल को पीट कर तलवार और अपनी अपनी हसिया को पीट कर बर्छी बनाओ, जो बलहीन हो वह भी कहे मैं वीर हूं। Can you say amen? क्या आप उसके लिए आमीन बोल सकते हैं? Hallelujah. हालेलुया। This is the end time. तो ये अंतिम दिन का समय है। Hallelujah. Hallelujah. Turn whatever you have into the weapon. और जो कुछ भी आपके पास है उसको शस्त्र के अंदर बदल दे। Whatever the art you have, जो कुछ भी कला आपके अंदर है, whatever the wisdom that God has given जो you, कुछ भी परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है, use it for expansion and extension of kingdom of उसे God. परमेश्वर के राज्य की सरहदों को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें। Whatever the God has given you in your hand. जो कुछ भी परमेश्वर ने आपके हाथों में दिया है, David took the slingshot. और दाऊद ने उस गुलेर को लिया, With one slingshot he defeated the giant. और उसने एक गुलेर के साथ में एक बहुत बड़े दानों को मारा। What you have in your hand. आपके हाथों में आज क्या है? Hallelujah. With the jawbone, और गधे के जबड़े से Samson he killed 1,000 people. सिमशोन ने हजारों लोगों को मारा। What you have in your hand. आज आपके हाथों में क्या है? God is saying use it for the glory of God. परमेश्वर कह रहे उसे मेरी महिमा के लिए इस्तेमाल And कर, let the weak say I am strong. और ताकि कमजोर कहे कि मैं भी बलवान हूँ। Let the weak say I am strong. ताकि कमजोर कहे कि मैं बलवान हूँ। Let the weak say I am strong. ताकि कमजोर कहे कि मैं बलवंत हूँ। The rock is strong. और चट्टान मजबूत है। Let everyone in the kingdom of God should become a stronger person. ताकि परमेश्वर के राज्य में आने वाला हर एक व्यक्ति मजबूत व्यक्ति बने। Can you say amen to आप that? उसके लिए आमीन बोले। Hallelujah. Hallelujah. The God is making you stronger. तो परमेश्वर आपको आज मजबूत रीति से The बना रहा है। Lord is giving you strength. परमेश्वर आपको बल दे रहा When है। the sickness comes जब बीमारी आती है and you say I am weak, और आप कहते हो कि मैं कमजोर हूँ, but the Lord is telling you लेकिन प्रभु आपसे कहता through है the stripes of Jesus you are healed. यीशु के कोड़े खाने के तू चंगा His हुआ है। healing will enter in your life. उसकी चंगाई आपके जीवन में आएगी। When you don't have money, जब आपके पास पैसे नहीं होते, but the Bible says लेकिन बाइबल कहती है when you say you are poor, आप कहते हो मैं गरीब हूँ, let the poor say I am rich ताकि गरीब कहे कि मैं धनवान हूँ, because of his poverty, क्योंकि उसके गरीबी की वजह से, because of the poverty of Jesus. यीशु मसीह के गरीब होने के Who कारण have given you the riches and glory. उसने हमें अमीरियत और महिमा दी In है। the name of Jesus. यीशु के नाम में When you say I am weak, जब आप कहते हो मैं कमजोर हूँ, focus on Jesus. यीशु की ओर अपना ध्यान His लगाए strongness come into you. और उसकी मजबूती आपके अंदर From आएगी। head to toe you will feel I am strong in Jesus. सिर के बाल, सिर के पाँव के नाखून, तुम खुद को मजबूत महसूस Even the करोगे। pockets are empty. यहाँ तक कि जेब खाली है, You will know I am strong enough. आप सबको बोलो कि मैं मजबूत हूँ। Can you say amen to आप that? उसके लिए आमीन बोल सकते हैं। If you feel you are weak, अगर आप समझते हो कि मैं कमजोर हूँ, hallelujah. Hallelujah. When you say I am zero, जब आप कहते हो मैं शून्य हूँ, when you fight alone, जब आप अकेले लड़ते हो you are nothing. आप कुछ भी नहीं हो, But when you take Jesus with you, लेकिन जब आप अपने साथ यीशु को लेते हो, He makes you stronger, stronger and stronger. वो आपको मजबूत मजबूत और मजबूत बनाया जाएगा। Amen to Amen. that. Let the weak say I am strong. कमजोर कहे कि मैं बलवंत हूँ। If you are weak by health, अगर आप शारीरिक रीति से कमजोर हो, if spiritually you are weak, अगर आप आत्मिक तौर पर कमजोर if है, financially you are weak, अगर आप आर्थिक रीति से कमजोर हो, this afternoon you have come to the right place. इस दोपहर के समय आप सही स्थान पर आए हो। Take my Jesus with you. मेरे यीशु मसीह को आप साथ में लेकर He जाओ, will make you stronger. वो आपको मजबूत बनाएगा, He will fill you with His power. वो आपको उसके सामर्थ्य से भरेगा, He will change your story completely. वो आपकी कहानी को पूरी रीति से बदल देगा, He will transform you completely. वो आपको पूरी रीति से बदल देगा। Matthew chapter 26 मत्ती की किताब उसका 26 अध्याय and verse 41. और 41 पद। Matthew 26 and verse 41. मत्ती की किताब 26 अध्याय और 41 पद। Watch and pray, lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आत्मेने सांगितलं उपास कर. Your spirit has told you to fast and pray. आपकी आत्मा ने अगर बोले तो उपवास और प्रार्थना कर, But the body is saying, लेकिन शरीर कह रहा है eat. खा ले। Hallelujah. Eat. Eat. The body will tell you. और शरीर आपको बता दी जाएगी। And what happens? तो क्या होता है? Sometimes the people they listen to the body, और कुछ बार लोग जो अपने शरीर की सुनते हैं, listen to the flesh. शरीर की सुनते हैं। Can you say amen?
Listen carefully. I ध्यान से need सुनिए। 3 youngsters. Who can come here? मुझे 3 जवान लोग चाहिए जो आगे आ सकते। कौन है 3 लोग आगे आ सकते हैं? So when God created human being, तो एक परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। God made spirit as a king. परमेश्वर ने आत्मा को राजा के रूप में बनाया। Hallelujah. हालेलुया। Are you understanding, क्या आप church? समझ पा रहे हो कलीसिया? Hallelujah. हालेलुया। जेव्हा देवाने मानवाला बनवलं होतं, तुम्हाला आणि मला, त्यावेळेस देवाने आत्म्याला राजा बनवलं होतं. कोणाला राजा बनवलं? आत्मा, आत्मा, समजायलंय का नाही समजायलंय? कोणाला बनवलं राजा? आत्मा। Who is the king? राजा कौन है? Spirit is the king. आत्मा राजा है। Hallelujah. Hallelujah. So the spirit, God kept it ahead of everything. तो परमेश्वर ने आत्मा को सब चीजों से परे रखा। God is a spirit. परमेश्वर आत्मा है। Hallelujah. Hallelujah. John chapter 4 verse 24, you know. यूहन्ना 4:24 आप जानते हैं। God is a spirit and we should worship him in the spirit and truth. परमेश्वर आत्मा है, उसकी आराधना आत्मा और आत्मा से करनी चाहिए। So he created us in his own image. तो उसने हमें खुद की समानता में बनाया। God is a spirit. परमेश्वर आत्मा है His spirit is a king of kings. और उसका आत्मा राजाओं का So राजा है। in his image means the spirit is a king. उसकी समानता में मतलब उसकी आत्मा एक राजा There है। are too many revelations, but I'm making it short. Yeah. Just try to understand. The spirit is a king. कई सारे प्रकरण में कहानी को छोटा बनाऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आत्मा एक राजा है। Then God gave the soul. अब परमेश्वर ने प्राण को दे दिया। And the third thing, और तीसरी बात, God gave the body. परमेश्वर ने शरीर को दिया। Hallelujah. The first thing is आत्मा, पहला आत्मा है, प्राण, शरीर। शरीर. राजा कोण आहे? आत्मा। आत्मा राजा आहे. मग आता आत्मा जसं चालवल तसं यांच्या मागे प्राण आणि शरीर तसंच त्याच्या मागे जाणार. हाऊ द स्पिरिट विल लीड, जैसे आत्मा अगुवाई the करेगा, soul and body will listen to the spirit. Why? Because spirit is a king. क्योंकि शरीर और प्राण जो है आत्मा की सुनेंगे, क्योंकि आत्मा राजा है। Adam and Eve, they ate the fruit. आदम और हवा ने फल को खाया। You know? आप जानते हैं सब। Hallelujah. God said, don't eat. परमेश्वर ने कहा खाओ मत, But they ate the लेकिन fruit. फिर भी खाया उन्होंने फल। Why they ate? उन्होंने क्यों खाया? How they ate? कैसे खाया? They disobeyed क्योंकि उन्होंने आज्ञा नहीं and मानी they ate the fruit. और उन्होंने उस फल को लिया। My question to you is that मेरा सवाल आपसे ये है, the fruit eaten by spirit, soul or body, वो फल जो है आत्मा, प्राण या शरीर ने खाया था। man ate the fruit. मनुष्य ने फल को खाया। Hallelujah. The fruit of knowledge of good and evil he ate. जो अच्छे और बुरे का ज्ञान प्राप्त करने वाला फल तो उसने खाया। That day, the man, he heard the devil, he उस listened to him, he obeyed the devil, okay? उस दिन मनुष्य ने शैतान की सुनी और उसकी आज्ञा का पालन किया। And that day, उसी दिन that act was against God. वो परमेश्वर के विरोध में कार्य किया। And that day, what happened? और उस दिन क्या हुआ? This body became the king. ये The शरीर spirit भी went राजा back. बन गया और जीव मध्येच पाहिजे. हालेलुया. कारण काय होतं ना, शरीर एक सांगतं आणि आत्मा एक सांगतो आणि मधल्यामध्ये जीवाची घुटमळ. हा जीव नेहमी मध्ये पाहिजे. हालेलुया. बोलतात ना लोक जीवाची घुटमळ, ती ह्याच्यामुळेच होते. म्हणजे शरीर एकीकडे खेचताना आत्मा दुसरीकडे. हा जीव मध्येच नेहमी तरंगलेला राहतो बिचारा. त्याचं लय बँड वाजतो. हालेलुया. श्रीमंत माणूस काय म्हणतो? हे माझ्या जीवा खा पी मजा कर. खा पी मजा कर. आणि आपला दावीद काय म्हणतो? हे माझ्या जीवा परमेश्वराचा धन्यवाद कर, त्याचे सर्व उपकार विसरू नको. हालेलुया. हा जीव मध्येच आहे. यस. आता सगळं काही ठरवायचंय, त्या शरीराने आत्म्याला ठरवायचंय. द बॉडी अँड द स्पिरिट दे विल डिसाइड. अब ये शरीर और आत्मा अभी ये निर्णय करेगी. नाउ हु बिकेम द किंग? अब राजा कौन बन गया? बॉडी बिकेम द शरीर किंग. राजा बन गया. एंड हु इज द सर्वंट? अभी दास कौन बन गया? Spirit is the servant. अभी आत्मा उसका दास बन गया. Many a times Israelites they left God. कई बार इजराइल ने परमेश्वर को छोड़ दिया. They did whatever they want. Why? Because they came into the flesh. कई बार उनको जो उनको करना था उन्होंने अपनी मनमानी की. क्यों? क्योंकि उन्होंने obeyed शरीर the की सुनी. flesh. क्योंकि उन्होंने शरीर की सुनी. आहे की नाही? Yes. आपला मोशेवर डोंगरावर गेला, तो देवाशी बोलतो आणि यांचं खाली वासरू बनवायचा प्रोग्राम है ना. सोन्याचं वासरू केलं.
काय काय त्यांनी केलं. इस्रायल लोकांनी फ्लेश, सगळं शरीर सांगत होतं त्यांना. आत्मा ज्याच्याशी बोलत होता तो डोंगरावरती होता. हालेलुया. हालेलुया. म्हणजे शरीरात आहेत ते चुका करत राहिले. आता हा माणूस झाला पापी, म्हणजे हा एकटा नाही, मानव प्राणी. हालेलुया. हालेलुया. ऑल बिकेम सिनफुल पीपल. और सारे लोग पापी लोग बन गए. हालेलुया. हालेलुया. आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या ये सही है? सबको दिख रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हालेलुया. हालेलुया. So all the human being they become sinful. तो सारे मानव जाति पापी बन गए. So finally God took a decision. तो अंत में परमेश्वर ने निर्णय लिया, I will send my begotten son to set them free. मैं अपने इकलौते बेटे को भेजूंगा ताकि उन्हें आजाद करेगा. Jesus came into the world. यीशु इस दुनिया में आया, He stayed with us वो हमारे साथ रहा for 33.5 years. 33.5 साल के लिए. देवाचा पुत्र आमच्यात येऊन 33.5 वर्ष आमच्या बरोबर राहिला. Amen. खाल्लं पिल्लं उठला बसला मिराकल केले आमच्यात येऊन राहिला. एक गोष्ट बोलू का, थोडी जिवारी लागण्यासारखी पण बोलू का? देव सांगतो म्हणून. खूप माणसांनी, काय बोललो मी? खूप माणसांनी देव होण्याचा प्रयत्न केला, पण एकच देव आहे जो माणूस बनण्यासाठी आला. सगळे बोलले मला देव करा, मला देव करा, मला देव करा, पण एकच आहे जो माणूस बनून आला. आणि बोलताना पण असं नाही म्हटलं मला देवाचा पुत्र म्हणा, मनुष्याचा पुत्र. हालेलुया. मनुष्याचा पुत्र. त्याला सांगावं लागलं मला म्हणा ना तुम्ही मनुष्याचा पुत्र. मी देवाचा पुत्र आहेच, पण मला तुमच्या तोंडून ऐकायचं की मी मनुष्याचा पुत्र. तो आला, he came, he stayed with us and he died on the cross. वो आया, हमारे साथ रहा और कलवरी को उसके ऊपर मारा गया. And what he did, और उसने क्या किया? he washed all the sins. और उसने सारे पापों को धो He दिया. cleansed the body. उसने शरीर को साफ He किया. cleansed the soul. उसने प्राण को साफ He किया. cleansed the spirit. उसने आत्मा को भी साफ कर And he दिया. went to the heaven. और फिर वो स्वर्ग में चला गया. And do you know what did he promised? और अब जानते हो उसने क्या वादा किया? He promised, उसने वादा किया, I will go to the Father मैं पिता के पास जाऊंगा and I will send you the second comforter. और मैं तुम्हें दूसरा सहायक भेजूंगा. I am the first comforter. मैं पहला सहायक हूँ, But same like me, लेकिन वही मेरे समान he will come. वो आएगा. He will comfort you. वो आपको सांत्वना देगा. He will come. वो आएगा. He will come to you. वो आपके पास आएगा. Jesus ascended to heaven और यीशु स्वर्ग में चला गया. on the day of Pentecost. और पेंटिकोस्ट के दिन Disciples, they are waiting. चेले राह देख रहे थे. 120 people, 120 लोग they are in the upper room. वो ऊपरी कोठरी में थे. They are praying. वो प्रार्थना कर रहे And हैं. suddenly और अचानक there से was a noise. वहाँ पर एक आवाज With a greater noise. और एक बड़ी The आवाज. Spirit of the Lord came upon human being. परमेश्वर की आत्मा लोगों के ऊपर आ गई. The tongues of fire came upon 120 people. अग्नि की जीभ 120 लोगों के They ऊपर आ were गई. filled with the fire of God. वो पवित्र आत्मा की अग्नि से भर They गए. started speaking in unknown वो अन्य tongues. भाषा में प्रार्थना करने They लगे. were filled with the power of वो God. परमेश्वर के सामर्थ से भर गए. They received the Holy Spirit. उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया. What happened, you know that day? क्या हुआ उस दिन? The Spirit ये आत्मा, received the Holy Spirit. उसने पवित्र आत्मा को पाया. What happened that day? क्या हुआ उस दिन? Your spirit आपकी आत्मा and God's spirit परमेश्वर की आत्मा became one spirit. एक आत्मा हो गई. His spirit and your spirit mingled together. उसकी आत्मा और आपकी आत्मा एक हो गई. Now आप that spirit of God took control of this spirit. अब इस परमेश्वर की आत्मा ने इस आत्मा का नियंत्रण ले लिया. Now अब the Holy Spirit is a king of kings. अब पवित्र आत्मा राजाओं का राजा He है. cannot remain as a servant. वो अभी दास के रूप में नहीं रह सकता. That day उस दिन spirit came ahead पवित्र आत्मा आया and the flesh went behind. और शरीर पीछे चला गया. Now we can say अब हम कह सकते हैं my body is weak. मेरा शरीर कमजोर है. I know that. मैं जानता हूँ I have limitation in my body. मेरे शरीर के लिए कुछ सीमा है, But my spirit is strong. लेकिन मेरी आत्मा I मजबूत have है. received the power of Holy मैंने Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ को I पाया am है. no more weak. मैं अब भी कमजोर I am नहीं, strong
stronger. मैं मजबूत हूँ, I am powerful. मैं सामर्थी I हूँ, am dynamic. मैं डायनामिक I am हूँ, a child of मैं God. परमेश्वर का बेटा हूँ, Because क्योंकि the King of Kings and राजाओं का राजा the Lord of Lords, प्रभुओं का प्रभु He dwells in me. मेरे अंदर वास करता है। Hallelujah. Hallelujah. When you walk on the streets, जब आप रास्ते पर चलते हो, you will walk like a king and queen. आप राजा और रानी के समान चलोगे। Hallelujah. हालेलुया। The people will look at you. लोग आपकी ओर देखेंगे, अरे याचे खिसे रिकामे आहे. अरे इसके जेब तो खाली त्याला है, म्हणायचं टेन्शन घेऊ नको, टेंशन मत लेना, खिसे बघू नको, जेब को मत दे, माझा आत्मा मेरी आत्मा को बघ, देख, राजा आहे माझ्या मेरे अंदर आत्मा, राजा है, प्रभू आहे माझ्या आत्मा, मेरे अंदर प्रभु है, देवाच्या आत्म्याने भरलो मैं आहे, परमेश्वर की आत्मा से भरा हूं, देवाच्या सामर्थ्याने भरलो मैं आहे. परमेश्वर के सामर्थ्य मी से भरा जिथे हूं, पाऊल ठेवीन, जहां पर कदम रखूंगा भूमी माझा देव आशीर्वादित वो करणार आहे. भूमि मेरी आशीषित करेगा परमेश्वर। हालेलुया. हालेलुया। आज नंतर आज के बाद भिकाऱ्यासारखं बोलायचं नाही. भिखारी की तरह मत कहना। कॅन यू से आमेन टू क्या आप दैट? उसके लिए आमीन कह सकते हैं? कुठल्या थाटात राहायचं? राजा। राजेशाही थाटामध्ये. यस आली प्रभूची सामर्थ्यवान दासी. यस। आला प्रभूचा सामर्थ्यवान दास. आमेन आमेन। हालेलुया. हालेलुया। बोलणार तेव्हा पण मिळमिळीत बोलायचं नाही. यस ऐकताय का चर्च? यस। हालेलुया. हालेलुया। बोलताना पण राजशाही थाटात बोलायचं. आमेन। तुमच्या शब्दांना किंमत आहे. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। God has blessed you with the supernatural blessings. परमेश्वर ने आपको अलौकिक आशीषों से आशीषित किया है। Are you weak? क्या आप कमजोर हो? ते बँक सांगते अकाउंट वरती 10,000 रुपये तरी ठेवा. ते पण कट झालेत, मायनस मध्ये बॅलन्स गेले, तरी तुम्ही स्ट्रॉंग आहेत. कर्ज आहे तुमच्यावर बँकेचं, हप्ते थकलेत, तरी तुम्ही स्ट्रॉंग आहेत. खिशात 1 रुपया नाही तरी तुम्ही स्ट्रॉंग आहेत. जेब में 1 रुपया नहीं लेकिन फिर भी आप मजबूत है। आजारी पडलात तरी तुम्ही स्ट्रॉंग आहेत. बीमार है फिर भी आप मजबूत है। हे पाय दुखायला लागले, नीट चालता येत नाही तरी तुम्ही स्ट्रॉंग आहे. पैर दुख रहे बराबर नहीं चल सकते, आप मजबूत है। त्या सगळ्या बाह्य स्वरूपाच्या गोष्टी आहेत. वो सारे बाहरी रूप ते की बात काही पण है, असो, वो पण कुछ भी माझा नहीं हो। आत्मा प्रबळ आहे. लेकिन मेरी आत्मा मजबूत है। कोणतं वादळ, कोणतं संकट कोई ही आंधी, इमारत पाडू शकत नाही. कोई आंधी, कोई संकट इस इमारत को तोड़ नहीं सकती। ख्रिस्त नावी खडकावरती आपण उभे आहोत. यीशु नामक चट्टान के ऊपर हम खड़े हैं। कोणाच्या बापाची हिम्मत नाही किसके बाप की हिम्मत नहीं है की जे हे मंदिर पाडू शकते. जो इस मंदिर को तबाह कर सके। हालेलुया. हालेलुया। आर यू स्ट्रॉंग? क्या आप मजबूत हो? आर यू स्ट्रॉंग? क्या आप मजबूत हो? आर यू स्ट्रॉंग? क्या आप मजबूत हो? यू आर स्टेइंग इन अ रेंटेड हाउस. अगर आप भाड़े के घर पे रहे तो किराए के घर पे, स्टिल आर यू स्ट्रॉंग? फिर भी आप मजबूत हो। Your husband is making quarrel with you all the time. Still you are strong. आपका पति निरंतर आपके साथ झगड़ा करता है, फिर भी आप मजबूत हो। Your children are not getting good success in their lives. Still you are strong. आपके बच्चों के जीवन के अंदर अच्छी सफलता नहीं मिल रही, फिर भी आप मजबूत हो। घर तुमचं आहे, मजबूत आहे. खिडकीतून बघून बाहेर म्हणू नका अजून पाणी वाढलं तर कसं व्हायचं. तू खडकावर आहेस. चट्टान के ऊपर है। तू खडकावर आहेस. तू चट्टान के ऊपर है। तू खडकावर आहेस. तू चट्टान पर है। तू खडकावर आहेस. चट्टान पर है। तू वाळूवर नाहीस. तू रेत पर नहीं है। तुला पाडण्याची हिम्मत कोणामध्ये नाही. तुझे गिराने की हिम्मत किसमें नहीं है। पण त्याच तुझ्या खिडकीतून एक गोष्ट तू बघशील. लेकिन उसी खिड़की से तो अपने एक बात को जेव्हा देखेगा। पाऊस येईल ना तुला एक गोष्ट दिसेल. जब बारिश आएगी तुझे एक बात दिखेगी। तुझ्या डोळ्यासमोर तेरी आंखों के सामने गल्ल्यात पडताना तू पाहणार आहेस. गोलियत को पड़ते हुए तू देखेगा। तुझे गल्ल्यात तुझ्या पुढे पडणार आहेत. तेरे गले तेरे सामने झुकेंगे, तुझा गिरेंगे। दागोन तुझ्या पुढे पडणार तेरा आहे. दागोन तेरे सामने गिरेगा। हालेलुया. हालेलुया। आर यू स्ट्रॉंग? क्या आप मजबूत हो? लीव दोज थिंग्स यू आर टॉकिंग बिफोर. उन चीजों को छोड़ दे जो आप जिसके बारे में बात करते हो। लॉर्ड आई एम नॉट वर्दी. प्रभु मैं योग्य नहीं हूँ, आई एम डस्ट. मैं एक मिट्टी हूँ, आई एम मड. लॉर्ड मैं एक मिट्टी हूँ प्रभु, आई एम जीरो. आई एम नथिंग. मैं जीरो, मैं कुछ भी नहीं हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू. मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। अरे तो अलिशा मेला. Yes. सडलेल्या हाडांना माझा देव सोडायला तयार नाही. अलीशा मर गया, सड़ी हुई हड्डियों को छोड़ने के लिए परमेश्वर मेलेल्या हाडांमधून मिराकल घडतात. उन सड़ी हुई हड्डियों से भी उसने चमत्कार को किया।
इथं सख्खी बहीण म्हणते प्रभू नको येऊ तिकडं, दुर्गंधी सुटली असं. पर सगी बहन बोलती आमद, यहाँ पर दुर्गंधी आ रही है. बहीण लाजराच्या कबरेकडे जायला तयार नाही. सख्खी बहीण जी ढसाढसा रडतीये. सगी बहन लाजर की कब्र पर जाने के लिए तैयार नहीं है. समजून घ्या, समझ लो, नाही सोडत तो, वो कभी नहीं छोड़ेगा. कधीच नाही सोडत. वो कभी भी नहीं छोड़ेगा. किती अडचणी येऊ, नाही सोडत. कितनी भी समस्या जो नहीं छोड़ेगा. ही नेवर लिव्स यू, वो कभी नहीं छोड़ेगा. नेवर लिव्स. वो कभी नहीं छोड़ेगा. ही मेक्स यू स्ट्रॉंग. वो आपको मजबूत बनाएगा. एक अजून डीप थिंग आहे, सांगू की नको सांगू. और एक गहरी बात है, मैं आपको बताता हूँ. Once the Peter came to Jesus एक बार पतरस यीशु के पास आया and Jesus told him, और यीशु ने उससे कहा, I will build my church on this rock. मैं अपनी कलीसिया को इस चट्टान के ऊपर बांधूंगा. Hallelujah. हालेलुया. What is the meaning behind this word? इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या अर्थ है? There is a difference between Peter and Peter. So what I'm trying to tell you, when Jesus said to the Peter, I will build my church on this rock. जब यीशु मसीह ने कहा पतरस को, मैं इस चट्टान के ऊपर अपनी कलीसिया को बांधूंगा. येशूचे नाव आहेत वेगवेगळे, माहिती तुम्हाला. यीशु के अलग अलग नाम येशू हैं. जगाचा प्रकाश आहे. यीशु दुनिया का उजाला है. मीच खरा द्राक्ष वेल, तुम्ही सगळे फाटे. Yes. बऱ्याच गोष्टी आहेत. तसं ना मूळ भाषांतरात बघितलं ना, पीटर आणि पेट्रॉस हे दोन शब्द आहेत. पीटर और पत्रोस. पीटर आणि और पत्रोस. पेट्रॉस. पेट्रोस. पीटर म्हणजे खडकाचा एक छोटा तुकडा, पीटर मतलब एक पत्थर का छोटा सा टुकड़ा. आणि पेट्रॉस येशू फार मोठा खडक. पेट्रोस मतलब एक बड़ा ही चट्टान. हालेलुया. हालेलुया. खूप मोठा खडक, बहुत एकदम बड़ी मोठा. चट्टान. आणि पीटर म्हणजे छोटा खडक. यस. प्रेषित आणि संदेष्ट यांच्या पायावर तुम्ही रचले जात आहात. Yes. यू आर बिल्ड ऑन द फाउंडेशन ऑफ प्रॉफिट्स अँड अपॉस्टल्स. आप प्रेरित और भविष्यवक्ताएं की बुनियाद पर बनाए गए हो. सो दीज आर द स्मॉल रॉक्स. तो ये छोटे से पत्थर है. हालेलुया. हालेलुया. वी वर वीक, हम कमजोर थे, बट व्हेन द स्पिरिट केम, लेकिन जब आत्मा आई, वी बिकेम लाइक जीसस. हम यीशु के समान बन गए. आमेन. हालेलुया. आम्ही कचऱ्यात पडलो होतो, त्यांनी त्याच्या दरबारात आम्हाला घेतलं. यस. आम्ही कुठंतरी धुळीत पडलो होतो, त्याने त्याच्या मिठीत आम्हाला घेतलं. यस. हालेलुया. हालेलुया. आता आम्ही म्हणू शकतो, ख्रिस्त जसा मजबूत आहे, यस, तसेच आम्ही पण मजबूत आहे. जैसा यीशु मजबूत है वैसे हम भी मजबूत का? हैं. क्यों? कारण तोच ख्रिस्त, सेम सन ऑफ गॉड, थ्रू द पॉवर ऑफ होली स्पिरिट ही इज ड्वेलिंग इन अस. वही परमेश्वर का बेटा पवित्र आत्मा के सामर्थ के जरिए हमारे अंदर वास करता है. Someone who has received Holy Spirit for sure, किसी ने अगर सच में पवित्र आत्मा को पाया है, सैतान त्याला सांगतो हे पाप कर. शैतान उससे बोलेगा ये पाप कर. तो माणूस पाप करूच शकत नाही, वो व्यक्ति पाप कर ही नहीं सकता. कारण पवित्र आत्मा सांगतो माझ्या मुला. पवित्र आत्मा कहता है मेरे बेटे, हालेलुया, तिकडं तुला वळता येणार नाही, तुझा रस्ता वेगळा. तुझे वहां पर जाना नहीं होगा, तुझे तेरा रास्ता अलग है. That spirit makes you strong. वो आत्मा आपको मजबूत बनाती है. You must receive this Holy Spirit. आपको उस पवित्र आत्मा को प्राप्त करना है. So what we learn in the first session, तो पहले सेशन में हमने क्या सीखा? the house is on the rock और चट्टान पर बांधा हुआ घर, and the house should be strong like that rock. और वो घर जो है चट्टान के समान मजबूत होना It चाहिए. will become strong. अगर आप मजबूत हो जाओगे, It will become strong with the Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा के जरिए मजबूत हो जाएगा. Can you say amen? क्या आप उसके लिए आमीन हो सकते? Heavenly Father, Lord God, we come to you in the name of Jesus. स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम से फिर एक बार आपकी उपस्थिति में आते हैं. The house which was built on the rock, it remained even during the tough time. जो घर चट्टान के ऊपर बांधा गया, वो कठिन दौर में भी वो टिका रहा. Abba Father, अबा पिता, today आज we dedicate, we surrender ourselves to thy feet. आज हम अपने आप को तेरे चरणों के पास समर्पित करते हैं. And we believe विश्वास करते हैं we are that house which was built on the rock. हम वो घर है जो चट्टान के ऊपर बांधे गए थे. We are unshakable. हम किसी की और चीज से भी गिरा ही नहीं सकते हैं. We are protected.
हम सुरक्षित हैं, We are covered with the blood of हम Jesus. यीशु के लहू से ढके हुए हैं, We are full of Spirit of God. हम पूरे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं। Thank you, Jesus, for all the revelations that you have given us. धन्यवाद यीशु सारे प्रकाशन जो आपने हमें दिए हैं। Thank you, Master, for answering each and every word of this prayer. धन्यवाद स्वामी इस प्रार्थना का हर एक शब्द सुनने के लिए। Especially, Lord, we pray विशेष रीति से प्रार्थना करते during हैं the break time, Lord, take control ब्रेक के दौरान तू नियंत्रण ले of everything, Lord. सारी चीजों का, And we believe और हम विश्वास करते हैं more blessings are yet to come. बहुत सारी आशीष आने पर है। Thank you, Jesus, for blessing us. धन्यवाद यीशु में आशीष करने We के give you all the glory and honor to your name. तेरे नाम को सारा आदर महिमा देते In हैं। Jesus' matchless name we यीशु pray. के अतुल्य नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen, 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 amen. amen. Can we clap for Jesus? अब तालियां बजा सकते हैं यीशु के लिए। Somebody shout hallelujah. तो हालेलुया।